Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will do analysis of August 11 The Hindu Delhi edition newspaper. Our main topic of concern for today's newspaper is about NAVIC, IIT Delhi new branch in Abu Dhabi. Then we will discuss about the G20 summit which will happen, G20 meetings which will happen in Delhi. Then we will discuss from the editorial section about the Act East policy of India. Then we will discuss about NTCA from again the editorial section. Then we will discuss about the Monetary Policy Committee, deflation, and the federal price rise. And also we will discuss from the international relation about the India, Japan and Sri Lanka trilateral cooperation. So these are our main topic of concern for today's news analysis. We will discuss them one by one and many other important news as well. So let us begin with our very first topic, that is about a bill which seeks to remove Chief Justice of India from panel that picks Chief Election Commissioner and Election Commissioner. So Union government has introduced a bill to remove the Chief Justice of India from the panel to select the Chief Election Commissioner and Election Commissioner, and instead of the Chief Justice of India, the three-member panel committee will now have Union Cabinet Minister besides the leader of opposition from the Lok Sabha and the Prime Minister. So these three people will now elect the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner. There will be no CJI. So here the Chief Election Commissioner and other Election Commissioner appointment, condition of services, term and office bill 2023 was introduced by our law minister, that is Arjun Ram Meghwal, in the Rajya Sabha, and this basically proposed in order to ensure the neutrality for the opposition for the appointment of election commissioner. They proposed the selection panel should not have CJI. So this is an important upcoming. Just remember about this bill and about the selection committee. Moving further toward our next important article that is coming in from the India GPS system, that is NAVIC. Indian GPS NAVIC to be linked to Aadhaar enrollment devices. So here the NAVIC or the navigation with Indian constellation, that is the full form of NAVIC. It comprises of 7 satellite systems that make India's version of American GPS. जब कभी भी आप फोन खोलते हो, कोई जगह देखनी होती है, कोई लोकेशन देखना होता है, we used to open GPS. लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि GPS के साथ प्रॉब्लम ये है, it has been developed by America and they cannot go into the detail, like for example इंडिया में कौन सी गली कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ है, ये सब आपका जीपीएस नहीं बता सकता है. और जीपीएस की लोकेशन कई बार आपकी गलत भी होती है, वो गलत रास्ता भी बता देता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस और बिकॉज ऑफ नॉट दैट मच एक्यूरेसी. सो इसीलिए इंडिया ने अपना खुद का आपका एक सिस्टम बनाया है जो आपको लोकेशन बताएगा, दैट इज नाविक, और इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. So it will soon be integrated into the Aadhaar enrollment devices across the country as said by Department of State. Okay, and the department has also facilitated successful conduct of the field trial. So just remember what is NAVIC, just read about it, NAVIC क्या है, and just comment it out in comment box that how many countries have developed their own लोकेशन सिस्टम, लाइक जैसे इंडिया के पास नाविक है, यूएसए के पास जीपीएस है, तो ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिनके पास अपना खुद का लोकेशन सिस्टम है, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है. फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आगे बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जहां पे आपको पता चल रहा है कि आईआईटी दिल्ली ने अपना नया कैंपस अबू धाबी में खोला है and it will be opened by January 2024. So IIT Delhi के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी इन्होंने ये बताया है कि that they are planning to develop a new campus in Abu Dhabi and it will be soon come by January 2024 and it is in collaboration with the UAE. Obviously UAE के collaboration के साथ यहाँ पे ये लोग अबू धाबी में अपना सेंटर खोल रहे हैं. सो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा डिटेल्स नहीं आया है सामने, बट डेफिनेटली व्हेन इट विल कम इनटू बी वी विल डिस्कस अबाउट दैट. द अबू धाबी कैंपस, द झज्जर कैंपस विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेडिकल टेक्नोलॉजी विद अ फोकस ऑन द स्पोर्ट्स मेडिसिन. और जो हमारा दिल्ली कैंपस है आईआईटी का, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस का कंस्ट्रेन हो रहा था, दैट्स व्हाई दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन ओवर हियर.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक आपका रिसर्च और एकेडमिक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए और साथ में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए यूएई के साथ यहाँ पे अबू धाबी में ये आपका आईआईटी दिल्ली का ब्रांच खुलेगा, ओपन होगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एंड ऑल्सो द डायरेक्टर टॉक्ड अबाउट द मेंटल वेलबींग। So here the student need to be mentally well-being so that they can cope up any situation। ये बात यहाँ पे उन्होंने की है। So this was an important news कि आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस कहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास न्यूज है इसरो के बारे में। अगेन वी ऑल नो कि चंद्रयान 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड द एक्सपेक्टेड डेट टू लैंड ऑन द मून सरफेस इज समवेयर अराउंड अगस्त 23-24 इस तारीख को यहाँ पे लैंड करेगा। तो यहाँ पे इसरो गियर अप कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन कि चंद्रयान 2 जो था वो उसमें आपका प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। तो बिकॉज यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, हार्ड लैंडिंग के चलते ये मिशन हमारा पार्शियली सक्सेसफुल रहा था क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी हमारा वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे जो लैंडर और रोवर है वो आपके सही तरीके से लैंड नहीं कर पाए थे और क्रैश कर गए थे। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 को इंट्रोड्यूस करने का या लॉन्च करने का सिंपल पर्पस, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाए। तो यहाँ पे आपका वो दिन आ गया है, सून देयर विल बी द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ Chandrayaan 3 on moon surface. So we will see what will happen. So here the image of this particular moon surface has been given by this particular lander image camera, and the second image of the moon is captured by the lander horizontal velocity camera. So these are the two cameras which is fitted in Chandrayaan 3. Apart from that, ISRO also posted on a social platform X, which was earlier called Twitter, Chandrayaan 3 mission Earth viewed by the lander image camera on the day of launch, moon image by the lander horizontal velocity camera a day after the lunar orbit insertion. So just remember about these two cameras and soon India will achieve the soft landing target on the lunar surface. Okay, आगे बढ़ते हैं। Again a news coming from Rajasthan. Rajasthan waives fuel surcharge for all the power consumer. So here Rajasthan government or the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, he announced that there will be a complete waiver of fuel surcharge for all the domestic and agricultural power consumer in the state. तो ये जो वेवर दिया गया है ये आपका 200 यूनिट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो यहाँ पे उनको वेवर मिलेगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज एंड इट इज इन लाइन विद द गांधीयन वैल्यूज एज सेड बाय गहलोत। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगेन अ न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द G20. So here New Delhi is gearing up to host the G20 Heads of State Summit on September 9 and September 10. So you have to remember कि न्यू G20 का जो Heads of State Summit है वो आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो यहाँ पे NCR का रीजन आपका तैयार किया जा रहा है। This is not important, just remember this thing कि G20 का Heads of State Summit कहाँ पे हो रहा है। Okay? Next news is coming in from the editorial section, and here we will discuss about a very important article where we will discuss about the Mekong Ganga Cooperation and the Act East policy of India. So here the news is coming in about the India-Myanmar quandary, its paradoxical policy. So as we know, Myanmar यहाँ पे आपका ऑलरेडी कूप हो चुका है। जो आपके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन थे जिनका नाम था सुकी, इनको हटा दिया गया था, इनको डिपोज कर दिया गया था और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था और ये आपका मिलिट्री की कंट्रोल में आ गया था म्यांमार। तो यहाँ पे इनको रिलीज तो किया गया है, शी हैज बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन टू द हाउस अरेस्ट, बट यहाँ पे आपका इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया गया है एंड देयर हैज बीन अ डिले इन द इलेक्शन। सो इट इज अ सेटबैक फॉर द डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे पहले ऑथर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये सिनेरियो हुआ था और आपका म्यांमार में एयर स्ट्राइक्स हुए थे। उसके अलावा जो जनता थी उन्होंने डिसाइड किया कि मिस त्सुयुकी को यहाँ पे सेंटेंस दिया जाएगा और साथ में इनको प्रिजन से मूव करके इनके हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। So these are about the Myanmar's
आउटकम या म्यांमार की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। हमारे लिए बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी कूप हो चुका है, जो आपकी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको मिलिट्री ने हटा दिया है, एंड Suu Kyi is the famous personality. Okay. Now, what is important for us is about the India policy, and specifically talking about, there is a mention of Mekong Ganga Cooperation. So, we will discuss in detail about these two things, that is what is Mekong Ganga Cooperation and what is the Act East policy of India. So, just start writing down about these two important things. Mekong Ganga Cooperation. So, Mekong Ganga Cooperation is basically an initiative by 6 countries for cooperation in tourism, culture and education. Okay. And along with that, there will be also a cooperation for the transport and communication. Okay. It was launched in the year of 2000 at Vientiane, Laos, PDR. ओके, यहाँ पे आपका 2000 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे बेसिकली जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे क्या है, गंगा है और मेकोंग रिवर है। तो ये जो आपका गंगा और मेकोंग रिवर है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री एस्पेक्ट से। दे हैव देयर ओन लाइक हिस्ट्री और रिलेटेड टू द सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे इस इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या चाहते हैं, हम इन दोनों सिविलाइजेशन को, जो आपके मेकोंग रिवर पे स्थित है और जो आपके गंगा रिवर पे स्थित है, इन दोनों लोगों को साथ में लाना चाहते हैं और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिससे आपका यहाँ पे इन सारी चीजों में टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, इन सब में हम कोलैबोरेट कर सके, साथ में मिलके काम कर सके और एक कल्चरल और कम्युनिकेशनल लिंकेज बना सके। अब यहाँ पे जो आपकी MGC मीटिंग होती है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग होती है, वो आपकी को चेयर ऑल्टरनेटिवली करते हैं हर एक कंट्री। आपकी 5 मेकोंग रिवर की कंट्री है और इंडिया आपकी, क्योंकि गंगा के तट पर स्थित है, तो आपका ये आपका पार्ट है। ठीक है। अब ये जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन है, ये लिख लीजिए। एक तो ऑब्वियसली आपका इंडिया है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट द बैंक ऑफ गंगा। देन देयर आर 5 आसियान कंट्री। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, जहां पे इस फोरम को लॉन्च किया गया था। देन देयर इज म्यांमार, then there is Thailand, then there is Vietnam. Okay, so this is important detail about the Mekong Ganga Cooperation. So जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कल्चरल एक्सचेंज होगा, डायलॉग और कॉपरेशन होगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपरेशन आपके ये सारे सेक्टर्स में रहेंगे। साथ में कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है, इसको फर्दर एक्सपेंड कर दिया गया था और हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, इसको भी यहाँ पे लाया गया था। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आपका इंट्रोड्यूस किया गया था मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, ये आपका इसी लाइंस में, इसी पॉलिसी के लाइंस में हम मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन को या इस प्लेटफॉर्म को रिन्यू करते हैं। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सो इंडिया की ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये आपका डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जो बेसिकली आपका इंडिया एंगेजमेंट इन अदर ईस्ट इंडियन या ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली यहाँ पे कौन सी कंट्रीज आती हैं, आसियान मेंबर स्टेट्स, इनके साथ जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, कल्चरली रिलेशंस जो है उसको इंप्रूव करना है एशिया और पैसिफिक रीजन में। अब ये जो पॉलिसी है, ये वैसे लॉन्च हुई थी 2014 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये पॉलिसी जो है, ये एक कंटिन्यूएशन है किस पॉलिसी का,
लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब यहाँ पे 2014 में सिर्फ नाम बदल दिया गया है। पहले ऑलरेडी हमारे पास लुक ईस्ट पॉलिसी थी, और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी ये किसने लॉन्च किया था, किसने प्रपोज किया था? आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। ओके, ही प्रपोज्ड लुक ईस्ट पॉलिसी इन द ईयर ऑफ 1991। और यहाँ पे मेन फोकस यही था कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से हमारा रिलेशन अच्छा हो। अब डिफरेंस क्या है? नाम बदला गया, एम वही था, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। सो एक जगह हम लिखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी, दूसरी जगह हम लिखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो आपका लुक ईस्ट पॉलिसी है ये आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये एंश्योर करता था। और यहाँ पे फोकस जो था दैट इज लिमिटेड ओनली टुवर्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही सिर्फ और सिर्फ फोकस था। अब आता है दूसरा आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये आपका डीपन करने की कोशिश करता है और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है थ्रू द कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंजेस। और यहाँ पे जितने भी ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसमें सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की गई है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नहीं आएंगे, जो एशिया पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आएंगे। तो यहाँ पे बस डोमेन बड़ा कर दिया गया है और नाम बदल दिया गया है, ठीक है। So this is about the important detail of Mekong Ganga Cooperation, Look East Policy and Act East Policy. Going back to our news, that is about India's policy. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं जैसे ही आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया था उसी टाइम पे बेसिकली कूप हुआ था, तो यहाँ पे इंडिया ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया था। कैसे? अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग, व्हाटएवर इज राइट, व्हाटएवर इज रॉन्ग, इंडिया ने अपना एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिया था, that is by providing food and vaccine assistance to the common people कोविड-19 के टाइम पे। और यहाँ पे बहुत सारे म्यांमारीज जो थे दे हैव ऑलरेडी, मतलब जो आपका वायलेंस चल रहा था उस टाइम पे, तो बहुत सारे म्यांमारीज इंडिया के अंदर भी आए थे। एंड साथ में यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं जो बॉर्डर के अराउंड रहती हैं, दे डिफाइड द होम मिनिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द रिफ्यूजी। और इसके अलावा मणिपुर में जो अभी इंसिडेंट्स हो रहा है, तो मणिपुर से भी बहुत सारे लोग आपके म्यांमार में जा रहे हैं, दे आर लीडिंग टुवर्ड्स म्यांमार। So they are also, Myanmar is also helping them and they are also basically helping these refugees. अब यहाँ पे जो कंसर्न आ रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच, जो कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है, दैट इज अबाउट द ड्रग मीनेज और दैट इज अबाउट द ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग और ड्रग्स मरी, क्योंकि जो म्यांमार का बॉर्डर है इंडिया के साथ दैट इज वेरी पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है कि समवन कैन एंटर, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए ये बहुत ज्यादा पोरस है, तो इसीलिए ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होती है इस बॉर्डर के अराउंड और ड्रग स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके चलते जो इंडिया है उसने सस्पेंड कर दिया था फ्री मूवमेंट रेजिम सितंबर 2022। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं उन्होंने अपना इशू उठाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्टेबिलिटी इन बॉर्डर एरियाज, इन सब पे हमें बात करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकॉक में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मीटिंग, जो मैंने आपको बताया मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में ये जो मीटिंग होती है इसको चेयर कौन करते हैं, पीरियोडिकली यहाँ पे घूमता है, हर साल में होता है ये मीटिंग और पीरियोडिकली इन 6 मेंबर्स के बीच में घूमता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है उन्होंने सपोर्ट किया था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, मतलब आसियान 5 पॉइंट कंसेंसस, और साथ में इन्होंने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है म्यांमार के टाइम पीरियड में म्यांमार के साथ इंडिया को, और म्यांमार का कंडीशन कैसे एक पैराडॉक्सिकल कंडीशन है। सो दीज policies are important, these things are important. Just remember about the Act East policies, about the Mekong Ganga Cooperation and about these important like free movement regime कब बैन किया था, तो ये सारी चीजें आपके लिए important हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले important की तरफ, important न्यूज की तरफ। यहाँ पे आपका RBI's inflation fighting metal will be tested in the months ahead।
तो यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इन्होंने अपना पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज छोड़ दिया है और यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया है दैट रिस्क टेकन बाय द रेट सेटिंग पैनल स्पेशली व्हेन viewed in the light of upward revision of its inflation forecast. So barely 2 months after projecting the consumer price index inflation to average 5.1%, यहाँ पे MPC ने रेस किया है अपना forecast for the annual average by 30 basis point to 5.4%. So we will discuss in detail about what is MPC, Monetary Policy Committee क्या होती है, क्योंकि इन न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी आपका न्यूज इन ट्रांजिशन है या जो आपका कमेटी रिपोर्ट्स हैं, ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट है, इसके लिए आपका करंट का एस्पेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यू शुड नो अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और द स्टैटिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट. सो अंडर सेक्शन 45ZB of the RBI Act 1934, इस एक्ट के तहत बेसिकली आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश और टू कंस्टिट्यूट अ 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और जिनका मेन काम क्या होगा, दे विल डिटरमिन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. तो यहाँ पे बेसिकली ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं और उसके बेसिस पे ये अपना क्या करते हैं, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट स्टैब्लिश करते हैं. फर्स्ट एमपीसी जो थी, फर्स्ट सच एमपीसी, इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ सितंबर 29, 2016. ओके, अब आपका फंक्शन क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, that is required to achieve the inflation target, ये इनका मेन काम होता है. ठीक है, that is the main function of मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. और यहाँ पे जो डिसीजन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, इट इज बाइंडिंग ऑन द बैंक और ऑन द आरबीआई. ठीक है, मेंबर की बात करें कि कौन कौन इस पर्टिकुलर एमपीसी कमिटी के मेंबर होते हैं, तो सबसे पहले आपके आरबीआई गवर्नर जो होंगे, वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. इसके अलावा आपके डेप्यूटी गवर्नर होंगे, जो कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में है, इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ही विल बी द मेंबर. और साथ में एक ऑफिसर होगा जो आपका बैंक या सेंट्रल बैंक जो है नॉमिनेट करेगी, मतलब आरबीआई जो नॉमिनेट करेगी. इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाएंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है. तो अब यहाँ पे जो ये लास्ट कैटेगरी आती है, उसमें बेसिकली आपका अपॉइंटमेंट में कौन होने चाहिए, तो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैव अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो आपके इसमें अपॉइंट हो सकते हैं. सो दिस स्टैटिक एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो न्यूज इन ट्रांजिशन है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे जो आपका पॉलिसी रेट है वो अनचेंज्ड है, और हमें ऑलरेडी पता है क्या है पॉलिसी रेट. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज द पॉलिसी रेट विच हैज बीन फिक्स्ड इन द लास्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है, वो अभी तक फिक्स रहा है. आगे बढ़ते हैं. Next news is coming in from the needed intervention. We have already seen that few cheetahs are, जिनको हमने introduce किया था, from Namibia and South Africa. Out of them 3 cheetahs have already died. तो और कुछ cubs थे वो भी मर गए थे. तो इसके लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए ने, जो रिस्पॉन्सिबल है टाइगर सेंसस के लिए, चीता की पॉपुलेशन के लिए, तो इन लोगों ने एक तो टाइगर के ऊपर बात की है, दूसरा चीता के ऊपर बात की है. तो क्या बात हुई है, स्पेसिफिकली यहाँ पे आपका टाइगर्स के ऊपर बात की है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने हैबिटेट के ऊपर बात की. सो हियर द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द NTCA, they are responsible for the quadrillion tiger census reports. और जो अभी रिसेंट एस्टिमेट बताएगा कि कितना पॉपुलेशन है टाइगर का इन इंडिया.
So Madhya Pradesh for the second time in 8 years reported 785 tigers और about a fifth of the national count. इस स्टेट में मध्य प्रदेश में आपके 50% राइज हुए हैं टाइगर की पॉपुलेशन में लास्ट टाइम से अगर हम देखें तो, एंड अ फिगर बेटर्ड ओनली बाय बिहार विच हैज लेस देन 10% ऑफ द एमपी टाइगर रिजर्व्स. ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मध्य प्रदेश जो है उसमें आपके टाइगर्स की क्वांटिटी भी अच्छी है, 785 टाइगर्स हैं और ये इम्प्रूव भी हो रही है. लास्ट 2 डिकेड में मध्य प्रदेश ने जो आपके स्पेशीज है जैसे कि बारहसिंगा दैट इज स्वैम्प डियर, इनको न्यू हैबिटेट में शिफ्ट किया है दैट इज सतपुदा एंड बांधवगढ़. जस्ट रिमेंबर अबाउट ऑल दीज नेम दैट दीज पार्क्स और दीज नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. सतपुतला और बांधवगढ़, और यहाँ पे जो गौर है उसको बांधवगढ़ और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और प्रे स्पेशीज जैसे कि आपका चीतल हो गया, इनको भी यहाँ पे सप्लीमेंट किया गया था सतपुदा और संजय टाइगर रिजर्व में. इसके अलावा नौरादेही, कूनो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पे भी ट्रांसलोकेशन किया गया था इन सारे प्रे स्पेशीज का फ्रॉम अ हाई डेंसिटी पेंच एंड बांधवगढ़. ओके, और इसमें ट्रैक किया गया, डार्ट किया गया, कैप्चर किया गया एनिमल्स को, और उसी के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोएक्टिव तरीके से जो यहाँ पे प्रे स्पेशीज को इंट्रोड्यूस किया गया है उससे जो टाइगर की पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीज. ओके, नाउ वी विल study about a very basic aspect of NTCA or a little bit about the Project Tiger. So what is NTCA? It is National Tiger Conservation Authority. ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपकी MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा स्थापित की गई है. कब स्थापित की गई? इन द ईयर ऑफ 2006. और ये स्टैट्यूटरी बॉडी ऑब्वियसली किसी एक्ट के थ्रू आई होगी, तो कौन सा एक्ट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को स्टैट्यूटरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था. और इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है उसका मेंटेनेंस करना, ये सब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब एनटीसीए के मेंबर्स कौन कौन होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. हु आर द मेंबर्स ऑफ एनटीसीए? सो दे आर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ MOEFCC, ये आपके चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पे, he is the chairperson of this committee. इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन MOEFCC, ये आपके वाइस चेयरपर्सन होंगे. और 3 मेंबर जो आपके पार्लियामेंट के होंगे वो 3 मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड 1 विल बी द सेक्रेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर MOEFCC मिनिस्ट्री. ठीक है, तो ये आपके मेजर मेंबर्स होते हैं इस कमिटी के, इस एनटीसीए कमिटी के. ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर. वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज, व्हाट दिस प्रोजेक्ट टाइगर इज. सो हियर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किस मिनिस्ट्री का है? MOEFCC. और यहाँ पे इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया गया था. और यहाँ पे ये बेसिकली आपकी जितनी भी टाइगर रेंज स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में इन सिटू कंजर्वेशन की बात यहाँ पे करता है टाइगर्स की उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व में. अब ये जो टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये आपका लार्जेस्ट स्पेशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है वर्ल्ड में. लार्जेस्ट स्पेशीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन वर्ल्ड. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. उसके अलावा एनटीसीए जो है वो इसका सुपरवाइजिंग एजेंसी है. एनटीसीए के अंडर ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो वर्क करता है. आगे बढ़ते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कवर किया गया है. Here there is a news on Chinese deflation.
What is important from this particular news is the term deflation. ये जो न्यूज है ये आपका कोर इकोनॉमिक्स का न्यूज है. बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी अगर आपको पता होंगे तभी आप ये न्यूज समझ पाएंगे. सो हियर there has been a recent decline in the consumer price for the first time in the 2 years in July. So यहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है चाइना के अंदर. डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन एक ऐसा टर्म है जो हम आजकल यूज करते हैं, दैट इज रेफर टू द जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चर की है जिसका दाम 2 लाख है, तो कल को मेरी कार का दाम बहुत कम हो जाएगा, या मतलब मैं कह सकती हूँ 1,80,000 हो जाएगा. तो यहाँ पे प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम. बट हमें यूजुअली देख, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज होना, कि अभी 1,80,000 है, कल को वो 2 लाख हो जाएगा. लेकिन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन. तो यहाँ पे डिफ्लेशन का मतलब होता है कि देर इज अ जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. और ये जो टर्म है डिफ्लेशन, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ हैज नॉट ऑलवेज रिमेन्ड कांस्टेंट. पास्ट टर्म में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को राइज और फॉल के लिए यूज करते थे, मनी सप्लाई के लिए, रादर देन द फॉल इन द प्राइसेस. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? राइज जो होता है मनी सप्लाई में उसको हम कंट्रीब्यूट करते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबके पास पैसे हो, इफ वी ऑल हैव मनी, तो यहाँ पे चीजों का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है. लेकिन अगर हमारे सबके पास पैसे कम हो, मनी का फॉल हो जाए, तो क्या होगा? देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन. तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना में हमें डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है. अब डिफ्लेशन इज नॉट गुड, बिकॉज थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमेशा अच्छा होता है. अगर मार्केट में डिफ्लेशन होगा तो कोई भी इंसेंटिव ही नहीं रह जाएगा किसी प्रोड्यूसर के पास कि वो चीज को मैन्युफैक्चर करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार बना रहे हैं और आज आपने कार में बनाने के लिए 2 लाख रुपए लगाए और आपकी कार कल 1,80,000 की हुई, तो आपको तो लॉस ही होगा. तो इसीलिए अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई दिस सिनेरियो इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. और यहाँ पे इस सिनेरियो को डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, दैट इज अबाउट अ फेडरल फंड हाइक. So will the federal fund impact the developing country debt? अब यहाँ पे कुछ बेसिक एस्पेक्ट समझ लो, उसके बेसिस पे आपको ये न्यूज समझ में आ जाएगी. सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फेडरल रिजर्व? यूएस फेडरल रिजर्व. यूएस फेडरल रिजर्व को सिंपली हम फेडरल रिजर्व कहते हैं या फेड के नाम से कहते हैं. इट इज बेसिकली अ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, यहां पे ये काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ सेफ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, सेफ स्टेबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम की यहाँ पे ये बात करता है. और यहाँ पे ये जो आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम है, इसमें बेसिकली 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स होते हैं. देयर आर 12 फेडरल रिजर्व बैंक्स, और हर एक जो आपके फेडरल रिजर्व बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूएस की. मेन ड्यूटी क्या होता है इस फेडरल रिजर्व बैंक का? ये आपका नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको देखता है, सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है बैंक्स को, और साथ में ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास आरबीआई है, यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व ये सारे काम कर रहा है. अब अगर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में हाइक है यूएस फेडरल रिजर्व का, तो क्या होगा? क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द वर्ल्ड, उसको जानने की कोशिश करते हैं. अब क्योंकि ये यूएस फेडरल रिजर्व है तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल सेंट्रल बैंक होगा. अब जब फेड रेट अपना एडजस्ट करता है इंटरेस्ट रेट, तो ये वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट करता है डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज को. यहाँ पे कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि अगर हाईएस्ट
आपका इंटरेस्ट रेट है यूएस में, या फेडरल रिजर्व ने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रखा है, तो इट वुड मेक अमेरिकन असेट मोर अपीलिंग टू द इन्वेस्टर एंड पोटेंशियली लीडिंग टू द कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द एमर्जिंग एंड रिस्कियर मार्केट। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो क्या होगा, जो आपके अमेरिकन असेट्स हैं वो आपके ज्यादा अपीलिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो हमें पता है ये थोड़ा रिस्कियर इकोनॉमी है, हम क्या करेंगे, हम अमेरिकन एसेट्स पे आपका खर्च करेंगे या अमेरिकन एसेट पे, यहां से कैपिटल बढ़ के आपका अमेरिकन एसेट्स पे खर्च होने लगेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो होते हैं दे दैट विच रिलाई स्पेसिफिकली ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट वुड फील द फर्स्ट इम्पैक्ट। और हायर यूएस इंटरेस्ट रेट जो होता है, it can lead to the tightening of the global liquidity and it can make the borrower more expensive to the foreign interest। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो जैसे ही आपका फेडरल रिजर्व जो रेट है वो हाइक करता है, तो उससे जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है यूएस का और इंडिया का वो श्रिंक कर जाता है, जिससे जो आपका करेंसी ट्रेंड है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं दे आर टेम्प्टेड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्ट इन द यूएस असेट, और यहाँ पे डॉलर्स, यूएस ट्रेजरी यील्ड, ये सारे ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है, हमारा जो करेंसी मार्केट है, हमारा जो करेंसी ट्रेड है वो डाउनफॉल करने लगता है जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो अपना दाम बढ़ा देती है या अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टैटिक एस्पेक्ट। आपको बेसिक पता होना चाहिए तभी जाके ये न्यूज समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ विल द 21 ईयर हाई फेडरल फंड रेट अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमीज, ये समझाने की बात की गई है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसेंटली आपका फेडरल ओपन कमेटी जो है उसकी मीटिंग बैठी थी और इन्होंने अपना फंड रेट जो है इसको इंक्रीज कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट पे। ये जो बेसिस पॉइंट है इतना बड़ा बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब होता है 0.25। ठीक है, 0.25, इट बट दैट मच ओनली। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फेडरल रेट, हाइक हुआ है इसका इंटरेस्ट रेट, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट इंडियन एज वेल एज ऑल द डेवलपिंग मार्केट्स। आगे देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारा आ रहा है अगले सेक्शन से, जहां पे हम इंटरनेशनल इवेंट को डिस्कस करेंगे। तो इंडिया जापान दोनों साथ में स्टार्ट करना चाह रही है ट्राइलेटरल कॉपरेशन विद श्रीलंका। सो हियर श्रीलंका हैज ऑलरेडी कैंसल्ड अ जॉइंट MOU, इंडिया जापान MOU फॉर द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट इन कोलंबो। ये जो 3 कंट्री थी दे वांट टू स्टार्ट अ ट्राइलेटरल कॉपरेशन, बट अभी तक हुआ नहीं था, अभी तक देयर वाज अ कैंसलेशन ऑफ MOU। तो इसीलिए अब धीरे धीरे यहाँ पे तीनों कंट्री साथ में आएंगी और ये जो ईस्ट टर्मिनल कोलंबो पोर्ट पे ये वाला जो ट्राइलेटरल आपका कॉपरेशन है इसको रिन्यू किया जाएगा। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। नाउ देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज विच इज कमिंग इन फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। वी कैन से that soon AI will allow you to make a UPI payment using voice. We know AI टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आजकल बूम कर रही है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे और उसके बेसिस पे आपका जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये आपका न्यू टेक्नोलॉजी, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट इन द वर्ल्ड सेक्शन where we will see about a summit which has been conducted by Brazil. Brazil Amazon Summit, it closed on Wednesday with a roadmap to protect the tropical rainforest that was welcomed as an important step in countering the climate change. We know Amazon, they are also called the lungs of earth, क्योंकि Amazon forest इतना वाइड है, हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं, जो हम रिस्पायर करते हैं, वो आपका Amazon forest ही प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे उसी Amazon फॉरेस्ट को बचाने के लिए ब्राजील ने एक Amazon समिट रखा था और यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है और साथ में यहाँ पे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके इस फॉरेस्ट को और क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सके, इसके ऊपर बात की गई है। तो यहाँ पे जो 8 Amazon नेशन है, दे हैड साइंड अ डिक्लेरेशन ऑन ट्यूसडे इन बेल्जियम ब्राजील, इन बेलेम ब्राजील,
और यहाँ पे इन्होंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कैसे करें और साथ में कैसे हम अपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाएं। So these are the important news which we discussed. I hope आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। जितना भी स्टैटिक रिलेटेड एस्पेक्ट है वो आप एक बार अपने बुक से कवर कर सकते हैं, जो भी आपको आज यहाँ पे पढ़ने को मिला है, जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, फेडरल रेट इंटरेस्ट, ये सब आप अपने बुक से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।